शनिवार को आई अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगे आरोपों से भारत की राजनीति में जमकर हंगामा हो रहा है। और इस रिपोर्ट में जो आरोप सेबी चीफ पर लगे उसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस रिपोर्ट के हवाले से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है, जिसके बाद इस पर खूब बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन इस बीच ये बात सामने आई है कि शेयर बाजार से खुद राहुल गांधी मोटी कमाई भी कर रहे हैं। वो एक तरफ तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जो बातें कह रहे हैं, जो बयान उन्होंने दिया उससे निवेशकों में डर पैदा हो रहा है, और दूसरी तरफ खुद उनकी कमाई शेयर बाजार से लगातार हो रही है और बढ़िया कमाई हो रही है। आपको बताएंगे शेयर बाजार से राहुल गांधी ने कैसे और कितना अब तक कमाया है। लेकिन पहले जरा एक बार सुन लीजिए कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने शेयर बाजार में निवेश को लेकर पूरी बात क्या कही थी। जरा सुन लीजिए पहले एक बार। In India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. तो राहुल गांधी को आपने सुना, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि चुनाव नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर बाजार में घोटाले के आरोप भी लगाए थे। लेकिन उसके बाद बाजार फिर संभला और वापस अपनी रफ्तार में लौट आया, जो कि सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है और इसी वजह से शेयर बाजार लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसका फायदा आम निवेशकों के साथ साथ बड़े नेता भी उठा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, जिनमें खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी IANS के कैलकुलेशन के मुताबिक राहुल गांधी को पिछले 5 महीने में शेयर बाजार से करीब 46,49,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा उनकी ओर से रायबरेली लोकसभा चुनाव के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को राहुल गांधी के पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपए थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर 4.80 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। न्यूज एजेंसी IANS के कैलकुलेशन के मुताबिक राहुल गांधी को पिछले करीब 5 महीने में शेयर बाजार से 46,49,000 रुपए का मुनाफा हुआ। और इस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर बाजार से पिछले 5 महीनों में औसतन करीब 10 लाख रुपए की कमाई की है। ये मुनाफा राहुल गांधी की ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है, जिसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपए यानी कि 4 करोड़ 33 लाख रुपए थी, और शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो गई। अब सवाल यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी शेयर बाजार को तो जोखिम भरा बता रहे हैं,
लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में खुद हर महीने लगभग 9 लाख रुपए कमा भी रहे हैं। हालांकि हम राहुल गांधी की कमाई पर सवाल नहीं उठा रहे और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ऐसे मुद्दों पर सवाल भी उठाना चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आरोप में जो जोखिम वाली बात कही है उस पर यह सवाल है, क्योंकि ये सवाल निवेशकों के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के तरफ से सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों की जेपीसी जांच की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि आरोप बहुत गंभीर है, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए हमें जांच करवानी चाहिए। हालांकि इन आरोपों को मार्केट में कई विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप, सेबी और माधवीपुरी बुच ने भी इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बता दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।